Alright, Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum everyone. So, dear students, today we're going to talk about spellings. So, how to remember spellings and what are different rules to understand the structure of spelling. So, let me share the screen with you. So, So we are going to cover this topic from uh, a very famous book of English grammar that is written by Raymond Murphy. So I'm going to teach you the concept of that from uh, that book. So spellings, spellings. Okay, so if we look at different nouns and verb and adjectives, so we can see that they have following endings. Endings mean कि उनके end के ऊपर क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं. तो usually आपको noun के साथ SES का SES मिलता है. For example, books, ideas और matches. तो यू कैन एज यू कैन सी बुक के साथ एस लगा हुआ है, आइडियाज के साथ एस है और मैचेस के साथ ई एस लगा हुआ है. सो वी कैन सी एट द एंड देयर some words, sorry, some alphabets like s or es. Similar is the case with verbs s or es. For example, works, enjoys, watches. तो हम इस तरह की एंडिंग्स भी देखते हैं. ठीक है, स्पेशली ही शी इट के साथ. There are some verbs, and we can see that they ends with ing. So you can see working, ing, enjoying, ing, washing, and there are some words they are ended on ed. So you can see worked, enjoyed, washed, and similar is the case with adjective. For example, you see different adjectives that ends with er, like cheaper, quicker, brighter. Some of them end with est cheapest, quickest, brightest, and some adjective they are called as a verb as well. So they are cheaply, ly. So they end with ly, cheaply, quickly, and brightly. So जो डिफरेंट जो अल्फाज हैं, ठीक है, नाउन है, वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, तो उनके एंड पे ऊपर एस सी एस का इजाफा आ रहा है, आई एन जी लग रहा है, ई डी लग रहा है, ई आर लग रहा है और ई एस टी लग रहा है, एल वाई लग रहा है. ऑलराइट, सो अब हम देखेंगे कि ये जो पहले हम देखते हैं कि जो एस आ रहा है. फॉर एग्जांपल, यू इफ यू लुक एट द एग्जांपल बुक्स और आइडियाज, matches. Okay, now look at the difference. Here is S and here is ES. So how can we remember that where we need to put ES or S? How can we differentiate between different verbs? So there's a rule, there's a specific rule for that. Nouns and verbs plus S or ES. Okay, when we use S or when do we use ES? So if the ending is ES, when the word ends in S, double S, SH, CH or X. So if you look at a word and it ends on S, double S, SH, CH or X, then we put ES at the end of the verb or word. अगर तो लफ्स के एंड के ऊपर अगर आप देखें उसके लफ्स को, अगर वो इन पांच चीज़ों में से, पांच अल्फ़ाबेट्स में से किसी एक अल्फ़ाबेट के ऊपर वो ख़त्म हो रहा है वो वर्ड, तो हम डेफिनेटली उसके साथ ई एस लगाएंगे. ठीक है, लेट्स लुक एट द एग्जांपल. एस के साथ पहले देखते हैं बस, बी यू एस, बस. अब इफ यू लुक एट द वर्ड बस, इट एंड्स ऑन द वर्ड एस, द अल्फाबेट एस. अब एस चूंकि आ गया तो हमने ये रूल कहा था कि अगर एस आ जाए किसी भी लफ्ज के एंड के ऊपर तो उसको प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है, या उसकी उसको वर्ब उसको बनाने के लिए तो हम ई एस का इजाफा करेंगे. तो एस के साथ ई एस आ गया. मिस, अब डबल एस आ गया, ई एस आ गया. वॉश, एस एच आ गया तो ई एस आ जाएगा. मैच, सी एच है. अब देखें, यह यहाँ हमने ई एस क्यों लगाया, अब आपको पता चल गया, क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा था कि जहाँ पे सी एच हो, हमने ये रूल पढ़ा है कि अगर वर्ड जो है वो सी एच पे एंड हो.
Okay, so boxes. All right, so same is the case with if the word ends in spelling O. अगर O पे end हो रहा हो कोई लफ्ज, ठीक है, for example potato, so we would definitely put es at the end. All right, so here it ends in O, तो हम es लगा देंगे. Tomatoes, तो es लगा दिया end पे. Do है, ओ पे खत्म हो रहा है तो हमने डज लगा दिया है. गो है तो एंड पे हमने ओ पे क्योंकि खत्म हो रहा है तो ईएस लगा दिया. ऑलराइट, तो ये तो था किसी भी नाउन की जो एंडिंग है, ठीक है, उसके साथ हम एस या एस कब लगाएंगे. सो अगर वो लफ्ज जो है वो एंड हो रहा है एस के ऊपर, डबल एस पे, सी एच पे, एस एच पे, एक्स पे और ओ पे, तो हम उसके साथ ई एस लगा देंगे. ऑलराइट. ऑलराइट. Okay, up now let's look at if verse uh, ends in Y. For example, baby, carry, easy, etc. So how can we make plural of that, and how can we make or convert that word into different verbs category. तो उसको हम प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसके आगे वर्ब्स कैसे जनरेट करेंगे. सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है वर्ब वर्ब की, उसको हम कैसे करेंगे. अब हम इस रूल को देखते हैं. ऑलराइट, अब हम देखते हैं इफ अ वर्ड एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल बी वाई, आर वाई, एस वाई, वी वाई. ऑलराइट, अगर जो लफ्ज है वो एंड हो रहा है, एंड पे वाई है और उस वाई से पहले द प्रीसीडिंग अल्फाबेट इज कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट क्या क्या होते हैं, पहले वाउल को समझे. ए, ई, आई, ओ, यू. ए, ई, आई, ओ, यू जो पांच लेटर्स हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं वाउल्स लेटर्स. ए, ई, आई, ओ, यू. इनके अलावा जितने भी हैं वो क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं. ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो पांच हैं, ये ये वाउल अल्फाबेट्स हैं. ठीक है, और इनके अलावा जितने बाकी हैं, ठीक है, जैसे बी है, सी है, डी है, ये सारे जितने भी हैं, ये सारे क्या होंगे, कॉन्सोनेंट्स होंगे. अब रूल के ये कहता है कि एन वाई पे ख़त्म हो रहा है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, उस वाई को ख़त्म करके आई ई लगा देंगे. वी विल convert that y into ie and then put s at the end. फॉर एग्जाम्पल बेबी है, अब y आ गया एंड पे और एंड से पहले क्या आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया. ऑलराइट, अब ये रूल अप्लाई होगा, हम y को क्या करेंगे, आई ई में कन्वर्ट करेंगे और साथ में क्या s का इजाफा कर देंगे, तो बेबी बिकम बेबीज. स्टोरी, y ends in Y and the preceding letter is alphabet is R. So R is consonant. So now this rule will apply. We will uh, convert Y into IE and then put S at the end of the word. So it will become story into stories. Country, the same rule. Countries, secretary, secretaries, hurry, hurries, study, studies, apply, applies, try, tries. Now, these were the typical examples for converting noun into singular noun into plural nouns. Now let's look at how to convert verb into uh, different, you can say, categories: first form, second form, third forms. Okay, hurry. So the same rule applies here. The word ends in Y and before Y the letter is R. The preceding letter is R. So R is consonant. So that rule will apply. So what we do in that rule, we convert Y into IE, and what will we do? Then we put D at the end. So it will become hurry, hurried. All right. Study, studied. Apply, applied. Try, tried. Or you can look at this concept in this way as well, that y will be converted into I and then we will put ed at the end. So yi or ed, the same thing. So hurry, hurried. Study, studied. Apply, applied. Try, tried. All right, so
Same is the case with adjectives. So if the word ends in y, and before that the preceding word, the preceding letter is consonant letter. So what we will do? We convert y into I, and then we put er or est. So ER is if is that is comparative, and EST if that is superlative degree. अगर comparative degree होगी तो हम ER लगा के, ठीक है, सिंपल एडजेक्टिव को ER लगाने से वो comparative degree बन जाती है, ठीक है, और EST लगाने से वो superlative degree बन जाती है. तो easy, Y, Y पे खत्म, और उससे पहले क्या है, S है, S क्या है, कॉन्सोनेंट है. तो यही रूल अप्लाई होगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, we will change Y into I, and then we will put ER to make it comparative degree. IEST, I लगा दिया और EST लगा के इसको superlative degree के अंदर कन्वर्ट कर लिया. Same is the case with heavy, heavier, heaviest, lucky, luckier, luckiest. Alright. Alright, Y changes to I before the ending ly. अगर if you want to convert it into adverb form, so same case, the same rule will apply here. Easy, Y will be convert I, and then we will do ly. We will add ly at the end, and it will become easy to easily, heavy heavily, temporary temporarily. ठीक है, temporarily. ठीक है, तो अब क्या हुआ, y को कन्वर्ट किया I के अंदर और फिर एल वाई लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, ये एडवर्ब बन जाएगा. ठीक है, तो रूल कौन सा अप्लाई हुआ, ये वाला. इफ अ वर्ड एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट प्लस y एंड पे आ रहा है और प्रीसीडिंग वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट है. ठीक है, ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. Okay, why doesn't change before ing? If we want to convert into ing form, अगर हम ing form convert करना चाहें तो तब हम क्या करते हैं, तब हम इसके y को convert नहीं करते हैं किसी भी चीज़ में. फॉर एग्जाम्पल हरी, हरिंग, तो अब हमने y को यहाँ पे आय करके और आगे कुछ नहीं किया, हरिंग सिंपल ing लगा दिया. स्टडी, स्टडिंग, ing लगा दिया. अप्लाई, अप्लाइंग, ट्राई, ट्राइंग. So if we want to make it into an ing form, then we will not convert anything into anything. We just put simply ing at the end. All right. Y does not change if the word ends in vowel plus y. That's important. हमने रूल ये पढ़ा था, इफ अ वर्ड एंड्स इन वाई एंड द प्रोसीडिंग लेटर इज कॉन्सोनेंट, तब हम वाई को जो है ना कन्वर्ट करेंगे आई के अंदर और रिस्पेक्ट आई ई के अंदर, और फिर एस या ई एस का इजाफा कर देंगे. अब रूल क्या कह रहा है कि द लेटर, सॉरी, द वर्ड एंड्स इन लेटर वाई बट द प्रोसीडिंग वर्ड इज नॉट कॉन्सोनेंट. अब वो कॉन्सोनेंट नहीं है, नाउ इट इज वाउल, ए ई आई ओ यू पे है. तो फिर हम क्या करेंगे, हम वाई को कन्वर्ट किसी चीज में नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल प्ले, वाई पे एंड हो रहा है, नो डाउट, लेकिन इससे पीछे क्या आ रहा है, ए तो क्या है, वाउल लेटर है. ए ई आई ओ यू ये भी अभी हमने पढ़ा है. तो अब क्या होगा, ए जो है अब आ गया है, वाउल आ गया है. सो नाउ दैट्स रूल, द रूल दैट converting y into ie and s, that won't apply here because the preceding letter is not consonant. Here in this case the preceding letter is vowel. So for vowel we don't have any rule, so we will not change anything. तो हम simply क्या करेंगे, s लगा देंगे. और अगर हमने उसको ईडी फॉर्म में बनाना है तो ईडी लगा देंगे. मंकी, वाई पे एंड हो रहा है लेकिन उससे पहले वाउल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ई वाई ऐसे लगा देंगे, सिर्फ एस लगा देंगे. इंजॉय, अब वाई से पहले क्या आ रहा है, ओ आ रहा है. ऑलराइट, अब ओ क्या है, वाउल है. वाई क्या है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है. अब देखिए इंजॉयज हो गया, एंजॉयड बाय, बाइस. तो यहां पे हम बाय को बी वाई बी यू आई ई करके नहीं लिख सकते. ओके, गुड थी पॉइंट. ओके, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल डे से हम डेली बना लेते हैं और पे से हम पेड है. यानी हम ईडी यहाँ नहीं लगाते क्योंकि ये एक्सेप्शनल केसेस हैं. पे की सेकंड फॉर्म पेड होती है, ठीक है,
ये चूंकि वो आ जाते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स के अंदर आ जाते हैं, ये कैटेगरी ही डिफरेंट हो जाती है। से की सेकंड फॉर्म सेड होती है, हम SAYED नहीं लगाते हैं इस केस के अंदर। ऑलराइट। ओके, अब बात आ जाती है कि व्हाट इफ वर्ब एंड्स इन IE। अगर एक लफ्ज जो है वो IE पे, एक वर्ब IE पे खत्म हो, तो उसके लिए क्या रूल है? फॉर एग्जांपल द वर्ड वर्ब इज डाई, लाई, टाई। तो उसकी उस केस के अंदर हम उसको कैसे चेंज करेंगे ING के अंदर? अगर हम उसको ING के अंदर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? तो ये देखें, DIE डाई, तो हम क्या करेंगे, इस IE को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे वाई के अंदर और एंड पे ING लगा देंगे। फिर सुने, इफ अ वर्ब एंड्स इन IE, अगर एक लफ्ज जो है, एक वर्ब है, उसके एंड में IE आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको ING में कन्वर्ट करने के लिए IE को रिमूव करके उसको Y में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसके बाद ING का इजाफा कर देंगे। द वर्ड इज डाई, DIE डाई, नाउ इट एंड्स इन IE। अब हम क्या करेंगे, डी, इसको आई को वाई में कन्वर्ट कर देंगे और आगे क्या लगा देंगे, ING। लाए, तो IE को हमने वाई में कन्वर्ट किया, फिर ING लगा दिया। टाई, तो TY आ गया और ING लगा दिया। IE को हमने वाई में कन्वर्ट कर दिया। अगेन AEIOU आर वाउल लेटर्स एंड अदर लेटर्स BCDFG एटसेट्रा कॉन्सोनेंट लेटर्स। ये हमने बात पहले कर ली हुई है। राइट। अब बात आती है अभी, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एंड पे ई आ रहा होता है, ठीक है? तो उनके साथ जब हम ING लगाते हैं तो उनके साथ क्या रूल होगा? क्या हम उस ई को रहने देंगे या डिलीट कर देंगे? ठीक है, तो उसके मुतालिक हम पढ़ते हैं। ओके, इफ अ वर्ब एंड्स इन ई, वी लीव आउट ई बिफोर द एंडिंग ING। अगर तो कोई वर्ब है वो ई पे खत्म हो रहा है, उसकी एंडिंग ई है, तो हम ING जब लगाएंगे तो उस ई को खत्म कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल होप, HOPE, होप। नाउ द वर्ड होप एंड्स इन ई, so what we will do when we add ING, we will drop that E. Okay, we drop that E and we simply write HOPING, hope. Smile, so it ends in E, so we'll drop it and we'll write it smiling, SMIL, and E will be dropped, and then we will add ING. Dance, dancing, E will be dropped here. Confuse, confusing. Okay, but there are some exceptions as well. You know, there are some verbs and there are some rules that don't follow, that they're not generic. ठीक है, they cannot be applied everywhere. कुछ exceptional cases होते हैं, तो exceptions इसमें भी हैं. For example, the word see. अब now it ends in E, बट वी डोंट ड्रॉप ई, हम इसको ड्रॉप नहीं करेंगे, इसके साथ हम सिंपली ING लगा देंगे। एग्री, तो एग्रीइंग हो जाएगा, तो यहाँ पे हम जो है वो नहीं करेंगे। इसी तरह बीइंग है, B/बीइंग। अब बी के साथ हमने ING लगाया तो ई खत्म नहीं किया हमने, बी रहने, ई रहने दिया हमने, तो ये एक्सेप्शनल केसेस है। ऑलराइट, जर्नल रूल यही है कि इफ अ वर्ब एंड्स इन ई, सो इफ वी वांट टू मेक इट जेरंड और पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ING बनाना चाह रहे हैं उसको हम, सो वी विल ड्रॉप ई एट द एंड ऑफ द वर्ब, उसके वर्ब के जो एंड पे होगा ई, उसको हम ड्रॉप कर देंगे। ये जनरल रूल है। इफ अ वर्ब एंड्स इन ई, वी एड डी फॉर द पास्ट रेगुलर वर्ब्स। अगर हमने इसको पास्ट फॉर्म बनाना है तो सिंपली हम डी लगा देंगे। होप, होप्ड। स्माइल, स्माइल्ड। डांस, डांस्ड। कंफ्यूज, ई पहले ही था, साथ में डी लगा दिया, कंफ्यूज्ड। तो ये रेगुलर वर्ब्स होते हैं। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर वर्ब एंड इररेगुलर वर्ब्स? रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सिंपली ईडी लगाने से या डी लगाने से वो अपनी नेक्स्ट फॉर्म जो है, नेक्स्ट कैटेगरी में चले जाए, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। और अगर ऐसा ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म ना बनती हो तो फिर वो इररेगुलर वर्ब हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल से, SAY, से, कहना। सेड, सेड, अब से की सेकंड फॉर्म क्या है? सेड, सेड। थर्ड भी सेड है। अब यहाँ पे हमने ईडी लगा के सेड नहीं बनाया, तो हमने रूल डिफरेंट चेंज कर दिया, तो वो इरेगुलर वर्ब होगा। डांस है फॉर एग्जांपल, तो हमने जस्ट सिंपली ईडी लगा दिया एंड पे, या डी लगा दिया, तो आगे उसकी थर्ड और सेकंड फॉर्म डेवलप हो गई है, तो ये रेगुलर वर्ब हो गई। ऐसे वर्ब जिनके साथ ईडी लगाने से दे बिकम सेकंड और थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे रेगुलर वर्ब्स। और ऐसे वर्ब्स
जिनको सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए उनका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए, ईडी ना लगाना पड़े, कुछ और चेंजेस करनी पड़े, तो वो इरेगुलर वर्ब्स होंगे। ऑलराइट, ऑलराइट। नेक्स्ट इज adjectives and adverbs. If an adjective ends in e and we add r and st for the comparative and superlative. अब अगर एक जो लफ्ज है, एडजेक्टिव जो है या एडवर्ब है, वो एंड हो रहा हो ई के ऊपर, फिर हमारे पास क्या रूल है? तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली आर लगा देंगे और ई एस टी लगा देंगे या एस टी लगा देंगे उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल वाइड, हमने इसको ई को ड्रॉप नहीं किया, हम जस्ट आयर आर लगा दिया तो वाइडर बन गया, और सिर्फ सिंपल एस टी लगाएंगे तो वाइडेस्ट बन गया। ठीक है, तो रूल क्या कहता है कि अगर एडजेक्टिव एंड हो रहा हो ई के ऊपर तो हम इस ई को ड्रॉप नहीं करेंगे, सिंपली आर लगाएंगे तो कंपैरेटिव हो जाएगा, और एस टी लगाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। लेट, लेटर, लेटेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। ओके, ये एक रूल है। इफ एन एडजेक्टिव एंड्स इन ई वी कीप ई बिफोर एल वाई। अब अगर हमने एल वाई साथ लगाना है, ठीक है, उसको एडवर्ब में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम क्या कहेंगे, हम इस ई को ड्रॉप नहीं करेंगे। ठीक है, पोलाइट, पोलाइटली, एक्सट्रीम, एक्सट्रीमली, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूटली। सो ई इज नॉट ड्रॉप्ड, हमने जस्ट एल वाई लगा दिया, जिसको एडवर्ब बना दिया। और ये भी हमें एक बात समझ में आई कि अगर एडजेक्टिव को एडवर्ब में कन्वर्ट करने का तरीका ये कि अगर उसके एंड पे हम एल वाई लगा दें तो जनरली जो एडजेक्टिव है वो एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाते हैं। इफ एन एडजेक्टिव एंड्स इन एल ई such as simple, terrible, the adverb ending is ply, bly, etc. अब अगर हम क्या करें, एक जो एडजेक्टिव है वो खत्म हो रहा है एल ई के ऊपर, ठीक है, तो उसका फिर एडवर्ब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एल वाई, पी एल वाई, ई ड्रॉप कर देंगे, ई ड्रॉप कर देंगे और उसके एंड पे वाई लगा देंगे। सिंपल, एस आई एम पी एल, ई हमने ड्रॉप कर दिया और ई की जब हमने क्या कर दिया, वाई लगा दिया, तो सिंपली बन गया टेरिबल। टेरिबल, हम ई ड्रॉप कर देंगे और बी एल वाई एंड पे वाई लगा देंगे, टेरिबली। रीजनेबल, रीजनेबली, ठीक है, तो ई हमने ड्रॉप कर दिया। ऑलराइट, तो ये थे एडजेक्टिव्स को आपने एडवर्ब में कन्वर्ट करना है तो। ओके, थैंक यू सो मच। सो दैट्स ऑल अबाउट स्पेलिंग्स। हमारे कुछ पार्ट रह गए हैं कि हम डबल कैसे करते हैं, वो इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट मीटिंग है उसके अंदर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।